Very good morning, class 7 students. Yes, students, I hope you all are good at home and enjoying your online classes. Today we are going to start our English chapter number 6 and its name is How to Climb Trees. And what we will read today. Now you want to know that, ma'am, why its name is How to Climb Trees. As we know, students, for the hunters, for the shooters, when they are going to forest, they should know how to shoot, how to climb the trees. That is why our writer Jim Corbett, as we know, Jim Corbett, actually he was born in India, in Nainital, but he was not Indian, but he loved to hunting in the forest. He loved to hunt the animals and he loved the nature a lot. After meeting our main character, today's main character, whose name is Kunwar Singh, after meeting him, his nature was actually changed. He just loved the forest. He wanted to live in that areas. So today we are covering the page number 36. You can also open your books and read with me. I know you will literally love this story. So we are going to start the chapter reading. Till the beginning of this century, there were thick forests in the Kumaon and Garhwal hills where many tigers roamed freely. यानी कि ये कब की बात है, जब हमारी सेंचुरी स्टार्टिंग हुई थी. इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी. द फॉरेस्ट कुमाऊं एंड गढ़वाल हिल्स की बात करी गई है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट थे एंड वेयर वट द lions and the tigers were doing, they are actually moving here and there freely. They don't have to fear from humans actually. Jim Corbett was brought up in this region. Jim Corbett, who is actually writer of our story, he came to this region, yani area. He loved mountains, forest and animals. He was also an excellent shooter. He killed many man-eaters and saved the lives of countless people. What he did, he actually killed the man-eaters who were eating the mans. He killed them and saved many lives in his time. Why does Kunwar Singh tell young Jim that besides being an excellent shooter, he should know how to climb trees? Now here is the one question, that why did the Kunwar Singh, I already told you, Kunwar Singh is the main character of this story, who told one story of how to climb the trees to Jim Corbett. We will know about that. So let's continue with the chapter. Kunwar Singh was the first to visit me the day I was given my first gun. यानी कि कुंवर सिंह वो पहला पर्सन था जो जिम कॉर्बेट के पास आया था और उसको गन दी थी. He came early and with great pride I put the old double-barreled gun into हाई हैंड्स. अभी जो है वो बहुत पहले आता है और अच्छा ग्रेट प्राइड, यानी कि ही वॉज़ वेरी प्राउड कि उसके हाथ में, यानी कि किसके हाथ में, जिम कॉर्बेट के हाथ में, यानी कि डबल पाइप वाली यानी कि दो नाली पाइप होती है ना गन, वो उसके हाथ में थी, जिम कॉर्बेट के हाथ में थी. ही नेवर इवन बाय द फ्लिकर ऑफ एन आईलिड, यानी कि ही नेवर, उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई. फ्लिक का मतलब होता है उसने अपनी आंखें फ्लिप भी नहीं करी हैं. शो दैट ही हैड सीन द गैपिंग स्प्लिट इन द राइट बैरल. एज यू नो कि जो दो नाली गन होती है, यानी कि दो पाइप्स वाली जो गन थी, उसके राइट वाला जो पाइप था उसमें क्या थी, प्रॉब्लम थी. ही ऑलरेडी सीन दैट देयर वॉज अ गैपिंग राइट इन द राइट बैरल. ओनली द गुड क्वालिटी ऑफ द राइट बैरल वर कमेंटेड ऑन, यानी कि जो मतलब कि लाइफ वाली जो थी ना, इट वॉज वेरी गुड. देयर वॉज नथिंग टू चेंज इन टू दैट, ओनली द गुड क्वालिटी एज वी नो. एंड देन लेइंग ऑन द गन साइड ही टर्न टू मी एंड ग्लैडेड माई 8 years old heart and made me proud of my possession by saying, you are now no longer a boy but a man. यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने, कुंवर सिंह ने जो गन है उसको साइड पर रख दिया और वो जो है जिम कॉर्बेट की तरफ जो है टर्न करते हैं. और ये देखकर जो है जिम कॉर्बेट का जो है एक, जो उनका 8 साल के थे जब वो फर्स्ट टाइम कुंवर सिंह से मिले थे, और कुंवर सिंह ने ऐसा क्या कहा था कि जिससे उनका जो दिल है, यानी कि
Jim Corbett's heart was literally gladdened, यानी कि full of happiness. As you can see over here, I already wrote it. Gladdened means full of happiness. His heart was full of happiness. That what did Kunwar Singh say to him? He said that you are now no longer a boy but a man. Now you do not need to worry about anything because you are growing up a man. With this good gun, you can go anywhere you like in the jungles and never be afraid. Like as you know, जो जिम कॉर्बेट था अभी वो बड़े हो चुके थे. यू डू नॉट हैव टू फियर. कुंवर सिंह क्या कहते हैं कि अभी यू डू नॉट हैव टू फियर, यू कैन गो एनीवेयर. लाइक तुम जहाँ जाना चाहते हो यू कैन गो. तुम्हें किसी चीज़ से डरने की अभी ज़रूरत नहीं है. प्रोवाइडेड यू लर्न हाउ टू क्लाइंब ट्रीज. लेकिन बट यू शुड नो हाउ टू क्लाइंब ट्रीज, यानी कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है. राइट. I'll now tell you a story to show how necessary it is for us who shoot in the jungles to know how to climb trees. Here Kunwar Singh was telling Jim Corbett that I am now telling you that why is necessary to climb the trees, because यहाँ पे as we know, I already told you in earlier that if we know how to shoot for the shooters, but they should also know how to climb the trees to save their lives from the wild animals. Right. They should know how to climb. Why he said that? Because there is a one story. Har Singh and I went to shoot one day last April. Har Singh and I means Kunwar Singh and Har Singh in the April they went to shoot, यानी कि वो शूट करने के लिए कहाँ गए थे. We had started when the stars were paling and the through we combed the jungle, यानी कि they went to the forest to shoot. Right. And but the time was that the star was paling, यानी कि जो the sky was full of the stars and उन्होंने पूरा जंगल घूम लिया था. वी कॉम्ड द जंगल, यानी कि पूरा जंगल घूमने के बाद वी फाउंड नथिंग टू शूट, यानी कि कुंवर सिंह और हर सिंह को जंगल में कुछ भी नहीं मिला था. टुवर्ड्स इवनिंग वी स्टार्टेड फॉर होम. वहाँ पे कुछ नहीं मिलने के बाद जैसे जैसे इवनिंग होती जा रही थी, यानी कि रात होती जा रही थी, उन्होंने अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया. We took a sandy nala that ran through dense scrub and thorn bamboo जंगल. अब उन्होंने किस वे से जा रहे थे, वो जो उनका रास्ता था ना, नल्हा का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी कि एक जो है लंबी वाली जो है घाटी, आप ये कह सकते हो एक लंबा रास्ता, यानी कि हिल वाला रास्ता था. वो कैसा, यानी कि मिट्टी भरा रास्ता था, जहाँ उनको रास्ते में क्या क्या मिला था, यानी कि बड़ी बड़ी झाड़ियाँ मिली थी और जो बैम्बू यानी कि बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे. द एरिया वॉज लिटरली कवर्ड फ्रॉम द जंगल्स, यानी कि ट्रीज़ की तरफ से वो पूरा कवर्ड हो रखा था वो एरिया. एज वी वेंट अलॉन्ग, जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे थे, अ टाइगर केम आउट इन द नला एंड स्टूड लुक एट अस. जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए, बट दे सॉ, उन्होंने देखा कि एक टाइगर जो है उस रेवेन्यू से, एज वी कैन से दैट, कि वो अपनी केव से बाहर निकल कर आता है. एंड इट वॉज लुकिंग टू देम, यानी कि वो किनको देख रहा था, वो हर सिंह और कुंवर सिंह दोनों को देख रहा था. फॉर अ लॉन्ग मिनट द टाइगर स्टेड एंड देन इट टर्न्ड एंड वेंट बैक द वे इट हैड कम. यानी कि थोड़े टाइम तक तो क्या होता है, जो टाइगर था स्टेड, यानी कि उनको अच्छे से घूर रहा था. ठीक है. फिर क्या करता है, वो मुड़ जाता है दोबारा जो है अपनी गुफा में, यानी कि केव में. ही वेंट बैक. वी कंटिन्यूड ऑन आवर वे व्हेन द टाइगर अगेन केम आउट इनटू द नला एंड दिस टाइम एज इट स्टूड एंड लुक्ड एट अस इट वाज ग्रोल्ड एंड ट्विचिंग इट्स टेल. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कुंवर सिंह और हर सिंह ने दोबारा चलना स्टार्ट किया, टाइगर जो है दोबारा अपनी केव से निकलकर बाहर आता है और उनको दोबारा देखने लग जाता है. वहाँ पर खड़ा होकर उनको दोबारा देखने लग जाता है. और ग्रोलिंग का मतलब होता है घुर्राना. जब वो घुराते हैं ना, मतलब कि एक साउंड आता है, ग्रोलिंग एक साउंड है. एंड ट्विचिंग इट्स टेल, यानी कि अपनी टेल को वो मूविंग कर रहे थे. ट्विचिंग मीन्स मूविंग करना. राइट. We again stood quite still and after the time the tiger quietened down and left the nala. Then क्या किया उन्होंने, विदाउट मूवमेंट, दे डिडेंट इवन मूव बैक एंड मूव अगो. तो वो क्या करते हैं, बिना वहाँ हिले वहाँ पर खड़े रहते हैं. और कुछ टाइम बाद जो टाइगर था, ही लेफ्ट द एरिया, वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ किए. A little later, a number of jungle fowl rose cackling out of the dense scrub, evidently disturbed by the
टाइगर, अभी क्या होता है थोड़ी देर बाद टाइगर के कारण जो है जो झाड़ियाँ थी उनमें से जो है फूल गिरने लग जाते हैं। क्यों गिर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर जो है टाइगर की मूवमेंट हो रही थी। मूवमेंट होने के बाद क्या होता है, एंड वन ऑफ देम केम एंड सेट ऑन अ ट्री राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो उनमें से यानी कि एक जो टाइगर के ग्रुप में से एक टाइगर वहाँ आता है और ट्री के पास आके बैठ जाता है। किनके सामने? उन दोनों शूटर्स के सामने। एज द बर्ड अलाइटेड ऑन अ ब्रांच इन फुल व्यू ऑफ अस, और वहाँ पे जो बर्ड्स ऊपर बैठे थे वो फुल अपना व्यू ले रहे थे, लाइक दे वर इंजॉइंग कि अभी देखो क्या होने वाला है इन दोनों के साथ। एज द बर्ड हरसिंह सेड ही वुड शूट इट एंड सो अवॉइड गोइंग होम एम्पटी हैंडेड, यानी कि हरसिंह का उसने क्या कहा कि अभी जो है मैं इसको शूट करूँगा, अच्छा रहेगा ना कि मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा। I do not want to go empty handed. He added that shoot would frighten away the tiger and before I could stop him he had fired. और उसने ये भी ऐड किया कि अगर मैं शूट करूँगा तो जो टाइगर है वो क्या हो जाएगा, डर जाएगा। फ्राइटन अवे यानी कि डर कर भाग जाना। लेकिन जैसे ही कुंवर सिंह हरसिंह को रोकने की कोशिश करता, इससे पहले ही what did हरसिंह did? He fired. Next second there was a terrifying roar as the tiger came towards us crashing through broken branches. अभी दूसरे ही मिनट में क्या हो जाता है, वहाँ से एक बहुत ही जो है डराने वाली, टेरिफाइंग मीन्स हिडियस, जो है डराने वाली एक जो है रोर आती है, यानी कि एक ज़ोर से आवाज़ आती है, क्योंकि टाइगर जो है झाड़ियों से निकलकर उन दोनों की तरफ आने लग जाता है। ब्रांचेस में से वो निकलकर उन दोनों की तरफ उन झपट्टा मारता है ना, जैसे अपने कहते हैं, तो उनकी तरफ स्प्रैंगिंग करता है। एट दिस स्पॉट there were some rainy trees growing on the edge of the nala and dashed towards one while हरसिंह dashed towards another. इतने में ही उस स्पॉट पर, यानी कि जहाँ पर दे बोथ वर स्टैंडिंग, क्या होता है वहाँ पर जो ट्रीज़ थे वो क्या कर रहे थे, ग्रोइंग ऑन द एज, यानी कि हमने क्या देखा कि हमने स्टार्ट कर दिया कि हम जो है नला के नीचे जो ट्रीज़ हैं, नला में जो ट्रीज़ हैं, दे वर स्टार्टिंग टू क्लाइम ऑन द ट्रीज़ एंड आई डैश टूवर्ड्स वन, यानी कि मैंने जो एक तो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर ही दिया था। वाइल हरसिंह डैश्ड टूवर्ड्स अनदर, यानी कि एक पर तो है हरसिंह चढ़ रहा था और एक पर कुंवर सिंह, राइट। माई ट्रीज वॉज नियरर द टाइगर बिफोर इट अराइव्ड, यानी कि जो कुंवर सिंह का जो ट्री था, यानी कि वो जो है टाइगर के बिल्कुल पास में था, लेकिन उससे पहले वो पहुंच पाए वहाँ पर, उससे पहले ही कुंवर सिंह जो है वहाँ पर चढ़ गया था। हरसिंह हैडेंट नॉट लर्न टू क्लाइंब ट्रीज when he was boy as I had, यानी कि हरसिंह ने अपने चाइल्डहुड में he did not even learn कि कैसे ट्रीज़ पर चढ़ा जाता है, लेकिन जब दोनों फ्रेंड्स थे बचपन में, चाइल्डहुड में, कुंवर सिंह learned how to climb the trees but हरसिंह didn't, right? He was still standing on the ground reaching up and trying to grasp a branch when the tiger after leaving me sprang at him. यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो हरसिंह था वो सिर्फ पेड़ के नीचे खड़ा रहा। he can't move on the tree because he did not know how to climb, right? वो कोशिश कर रहा था, he was trying to grasping, यानी कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था ट्री की ब्रांचेस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही जो है टाइगर जो है कुंवर सिंह की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इतने में कुंवर सिंह तो क्लाइंब कर लेते हैं, बट हरसिंह कांट, क्योंकि ही डिड नॉट नो। इतना होने के बाद क्या होता है कि टाइगर जो है उस पर अटैक कर देता है। स्प्रैंग का मतलब ही वॉज अटैकिंग टू हरसिंह। हरसिंह वॉज स्क्रीमिंग एंड द टाइगर वॉज रोरिंग। हरसिंह क्या आ रहा था, ही वॉज लिटरली शाउटिंग टू मच लाउडली एंड द टाइगर वॉज रोरिंग, और जो टाइगर था वो रोर कर रहा था, यानी कि ज़ोर ज़ोर से घुर्रा रहा था। I had taken my gun into the tree with me, so now I have fired the gun off into the air. What did Kunwar Singh did? He had gun in his hands, so what he did? He fired in the air, यानी कि वो हवा में फायर कर देता है। क्यों करता है वो फायर? ताकि जो है इसकी आवाज़ सुनकर, यानी कि गन की फायर सुनकर जो टाइगर था, ही लेफ्ट द रीजन, यानी कि वो उस एरिया को छोड़कर
चला जाए. एंड द सिमिलर थिंग हैपेंड, यानी ऑन द हियरिंग द शूट सो क्लोज टू इट द टाइगर बाउंडेड अवे एंड हर सिंह collapsed एट द फुट ऑफ द ट्री. और ये साउंड सुनने के बाद, शूट का साउंड जैसे ही उसने क्लोजली सुना, किसने, टाइगर ने जैसे ही क्लोजली सुना, क्या होता है, वहाँ से टाइगर भाग जाता है. और ये करने के बाद हर सिंह क्या हो जाता है, वो सीधा जो है ट्री के पास उसका जो पैर है वो टकरा जाता है और उसको क्या आ जाती है, चोट भी आ जाती है. व्हेन द टाइगर हैड बीन गोन सम टाइम आई क्लाइंब डाउन एंड वेरी सडनली एंड वेंट टू हर सिंह. अभी जैसे ही टाइगर कुछ टाइम के लिए चला जाता है, व्हेन ही वेंट ऑफ, तो कुंवर सिंह जो हैं वो बिल्कुल बिना मूवमेंट के ही केम डाउन एंड केम टू हर सिंह. सो टुडे वी लर्नड अबाउट Kuvar Singh and Har Singh, what happened into the jungle with them, and how did, this is because of Har Singh that tiger attacked on them, because as we know animals are not attacking with their movements, because they should know जब उन पर कोई अटैक करता है, when they feel that there is a something to attack them, then they in their defense they do have to attack, right? तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी एनिमल पर बिना किसी रीज़न से अटैक नहीं करना चाहिए. इट इज़ अगेंस्ट टू द नेचर एंड इट इज़ अगेंस्ट टू द रूल, सो वी शुड नो द थिंग. सो हमने आज ये पढ़ा. हम नेक्स्ट देखते हैं कि आफ्टर व्हेन द टाइगर लेफ्ट द एरिया व्हाट हैपेंड टू हर सिंह एंड हाउ डिड Kuvar Singh helped him. So in the next class we will learn that. Till then I am just giving you some questions. You have to do it in your notebook. Until then, stay home, stay safe. Thank you.